about reading horoscopes, it's about decoding the unique mental energy thumbprint one was born with and learning how to flow with the universe instead of swimming against the current. There can be no better Gurujan to lead us onto this path than our Chari sir. Though Chari sir needs no introduction, but I would still like to say something about him. Uh, Rangachari Krishnamachari sir was born into a traditional South Indian Brahmin family. He studied astrology under Sri Srinivas Gopalachari and Sri Kadalangudi Natesa Shastrigal. He holds a Jyotish Visharad from ICAS Delhi and specializes in the Tajik system, uh, Varshful annual charts, Gemini astrology, Vastu, and palmistry. He is presently the vice president of ICAS and has served as registrar of examinations. He has also authored Tajik Shastra, a guide to annual horoscope or Varshfal. He has received titles such as Jyotish Brihadacharya, Jyotish Bhanu, and a Lifetime Achievement Award in 2016. ICAS Noida is specially privileged to have him as the faculty for post Visharad classes of ICAS Noida. Rangachari sir is a renowned 80-year-old Delhi-based Vedic astrologer and former banker with definitely deep expertise in every field of Jyotish, specifically Tajik Shastra. So I would like to welcome Rangachari सफाली sir. सफाली चारी साहब को बोलने से पहले आज का पर्पज चारी साहब को रखने का एक खास मकसद था। आज के दोनों वक्ताओं के साथ मेरा अपना खास अलग संबंध रहा है। प्रीति ने मेरे सेवानिवृत्ति के बाद तो मेरी मेंटल वेलनेस को मेंटेन करके रखा बात करके, और चारी साहब हमारे प्रथम शिक्षक थे जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना सिखाया। उससे ज्यादा आज जिन गुरुवर को हम याद कर रहे हैं, केदार साहब के हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं, और कपूर साहब के साथ भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। उनसे अच्छा आज के दिन में वक्ता नहीं हो सकता था मेरे लिए। तो आज आपको सर मैंने जानबूझ के रखा है जिस दिन हम अपने गुरुवर को याद कर रहे हैं, और उनकी पुण्यतिथि के दिन उस टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो आज के दिन में समाज की जरूरत है। तो चारी साहब को परिचय देने के लिए आप में से किसी को जरूरत नहीं है वहां पर। एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, इज ए मार्वलस। प्रिडिक्शन करें न करें, पर आपको प्रिडिक्शन करने के सारे रास्ते बता देंगे वहां पर, एज इफ द पर्सन इज सिटिंग बिफोर। वैसे शिक्षक को, खास तौर से गुरुवर केदार साहब के खास शिष्य को धन्यवाद है। सर आपका स्वागत भी है और आपसे अनुरोध है कि हमें उस यात्रा में ले जाएं जहां बहुत जरूरी है। आज के टॉपिक आपके पास। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक तरफ हर्ष हो रहा है, दुख भी हो रहा है। व्हेन जस्ट थिंक दैट ये दोनों गुरुवर, इन दोनों से कितना शिक्षा पाया वो लिखित रूप में दे नहीं सकता। दे ट्राइड इन सेवरल वेज टू चेक वेदर आई हैव नॉलेज और नॉट। बात को बता दिए, फिर भी I liked the way in which they developed the students. अगर मैं कुछ हूँ आज, it's only because of their, whatever you say. The fact is, ICAS in Delhi area, northern area, stood in the first range. The credit goes to these two. Whoever may say anything. The fact is, जितना इन लोगों ने, या the first, the quartets, I will say, along with them, two more people can be added, J.N. Sharma ji and Z. Ansar. These four people groomed students
irrespective of the time. We are thankful to them. So, before I start, just a small prayer and then Vaishali will take over. Thank you very much for giving an opportunity to speak what I have learned from them. Before that, a small prayer. Manikya Veenam Upalalayanthim Madalasam Manjula Vagvilasam Mahendra Neelatyutikomalankim Matanga Kanyam Manasa Smaravi. These are the words. But if you tune it, then you'll find how your mind change. Bear with me. Matang Manikyavinam Upalalayanti Madalasam Manjula Vagvilasam Magendra Neeladuti Komalangi Matanga Kanyam Manasa Smarabi Manasa Smarabi Chaturbuje Chandrakalau Avatam Se कुचोन्नते कुङ्कुमरागसोदे पुण्ड्रेषु पाशाङ्कुल पुष्पबाणहस्ते पुष्पबाणहस्ते नमस्ते पुनः. Now, the mind is one which you got always and keep it under control. Mental health is the topic, but I chose in a diversion the moon and the boat. You see, whatever factors that have been given, it's for you to see. But understand practical aspect. आपको पता है चंद्रमा इज द फास्टेस्ट प्लैनेट है. 2 दिन में राशि बदलना है, 2 दिन में अपना तत्व बदलना है, 2 दिन में अपना गुण बदलना है. दैट इज वाई, वही कारण है हमारा मन एक सा नहीं रहता कभी भी. When you see the Bara Russia, Karmasara, Agni, पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसा चल रहा है. एवरी 2 days जो एनर्जी आपके पास था, उस एनर्जी को यूज करने के लिए आपका मन दौड़ेगा. दौड़ते दौड़ते मन में बहुत सारा ख्यालें आएंगी. मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं. एक क्रिएटिविटी और इनोवेटिव माइंड विल वर्क. उसमें सफल हो गया, देन इमोशनल साइन जल. देयरफॉर खुशी से अगर फेल हो गया, दुख. नाउ see the planets which are ruling these rashis. The first 4, same. Every time when you see why we are behaving in a particular pattern, घर में
सुबह से शाम तक हैं। ऑफिस में सुबह से 10 से 5 बजे तक काम कर रहे हैं। घर का माहौल, दफ्तर का माहौल, अब प्रीति मैडम वॉज टेलिंग, है ना, घर का माहौल हो, ऑफिस का माहौल हो, जब हमारे कुछ जिम्मेदारी दिया गया है उसे निभाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि कैसे करें। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हम तो टीम लीडर हैं, लोगों को कैसे मैनेज करें। हम तो ब्रांच मैनेजर हैं, हाउ टू मैनेज हु हैज कम, हु हैज नॉट कम, हु इज गिवन व्हाट वर्क। तो आवर माइंड tosses over. So we try the four methods: Sam, Dan, Ved, Dand. Though Dand is the last resort, Sam, Dan, Ved. We try to compare between two children at home. वो करता है, आप नहीं कर रहे हो, उसके जैसा आप करो। अगर वो अग्नि तत्व का चंद्रमा हो उस दिन, पृथ्वी तत्व का चंद्रमा हो उस दिन, बेटा व्हाई डोंट यू डू दैट? See the change in your approach. You want both of them should understand. अगे वायु तत्व में चंद्रमा आ गया हो, see your mental status. You will start giving them art book. Why don't you draw something? आपकी creative ability. Why don't you think? Why should not you go to the park and play? ये सब हमने अपने बच्चों को सिखाया है। एस्ट्रोलॉजिकली अब देखोगे, चंद्रमा का खेल तो है। माइंड इज टॉसिंग, बट डिसर्निंग एबिलिटी चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। तो वो कहां से आएगा? यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए सिचुएशन अनदर सिचुएशन। इसमें इस तरह करना है, इसमें इस तरह करना है। उसके लिए आपका बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि भी सही है मान लो, देन आपका काम ठीक चल रहे हैं। ये सब आप पढ़ लीजिए। आई डोंट वांट टू रीड एंड वेस्ट माय टाइम ओवर दैट। जी, आई सारांश तो बता रहा हूं आपको। सो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन चाहिए हमें, प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए कभी भी। प्रॉब्लम को सोल्यूशन देखना है। अगर हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, एक नौकर आके बता रहा है, सर वो ऐसा कर रहा है, सर हमें दिक्कत हो रही है। तो उनको बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोलेंगे, ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू से। वो कुछ बोल रहा है। अगर हमारा माइंड ठीक है, वी विल ट्राई टू बैलेंस। अगर हमारा माइंड ठीक नहीं है, दोनों को ब्लास्ट दे के निकाल देंगे। आपको कोई काम नहीं है दफ्तर में, आज काम करो, इमीडिएट ब्लास्ट आएगा। उस दिन देखोगे चंद्रमा विल बी इन अग्नि। अरे व्हाई डोंट यू मैनेज, व्हाई डोंट यू फाइंड अ सॉल्यूशन? पृथ्वी तत्व, why did you do like this? This will give you a clear cut. Why tattva? Therefore, the state of mind depends upon the way in which the moon moves from
अगेन देखो, whether we will be able to convince them or we too have some doubt. कुछ शक है, ये करेंगे नहीं पता नहीं, या ये तो कर देंगे, हमें उम्मीद है करेंगे। ये दोनों को फर्क क्या है? चंद्रमा का फेस। अगर वो डिक्रीसिंग चंद्रमा हो, कृष्ण पक्ष का हो, हमारा माइंड में प्रकाश कम होता है। अगर इंक्रीसिंग चंद्रमा हो, योर माइंड विल ब्राइटन, flash up thoughts will come, new idea will come, you will try to. Therefore, when you take this health from mind point of view, from body point of view, from Atma, soul point of view, अब देखो how the practical situations come. We have taken birth. The soul has come into a particular body and it has to work on whatever it has left and then add up. First five houses, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. You know, 4, 4 to 8, 5 to 8, and 9 to 12. Our life goes on. Now, in this stage, age difference is also a factor for maturity of mind. Waning and waxing is the daily duty of Chandrama. Balancing is between Ashtami and Ashtami, आपको पता है. So when you take this the same planet, supposing we are talking about so far, चंद्रमा अकेले घूम रहा है, बट बर्थ चार्ट में चंद्रमा किसके साथ है? योर माइंड ऑल्सो विल वर्क लाइक दैट ओनली ना. चंद्रमा मंगल के साथ हो सकता है, चंद्रमा शनि के साथ हो सकता है, चंद्रमा शुक्र के साथ होता है, चंद्रमा बुध के साथ हो सकता है. सी द डिफरेंस. ये प्लैनेट जो आपको माइंड को दिखा रहा है, माइंड क्या है इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन. विचार, दैट्स ऑल. जो काम हमें करना है वो मतलब है, वो काम कैसे करेंगे उसका सोच आपके पीएसी अफसरवा से है. नो, घर में तरह तरह के लोग हैं, दफ्तर में भी तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट वाला है, डिफरेंट स्टेटस वाले हैं. नेबर्स भी देख लो. So, how to deal with others? आपका अपने चंद्रमा के अनुसार ही आप ये मेष राशि स्थित चंद्रमा और मिथुन राशि स्थित चंद्रमा या धनु राशि स्थित चंद्रमा या तुला राशि स्थित चंद्रमा में फर्क है ना. चर राशि स्थित चंद्रमा, स्थिर राशि स्थित चंद्रमा या दुस्वभाव राशि स्थित चंद्रमा. हैवंट यू सीन पीपल? आप अपने को सोचो. You just experience yourself what you have done today so far. We were spellbound when the previous speaker was. जो कहना है उन्होंने सही ढंग से कर दी. What is expected of each human being? सही. एडवाइस देना सबका काम है, दे दिया. हम भी एडवाइस दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजर. फॉलो करना उनका काम है, फॉलो करेंगे या नहीं
तो उनके मनोस्थिति के अनुसार ही हमारा प्रिडिक्शन होना है, ये अंडरलाइन करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कल एटलीस्ट हाफ एन आवर ए पर्सन वाज टॉकिंग टू मी, सर आई हैड एस यू एडवाइस। मैंने अपने एमडी से जाके मिला, एमडी ने कह दिया आपका 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी से 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दे रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे रहे हैं। उनका प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज उनका चंद्रमा वीक इस इन वृश्चिक राशि और विशाख नक्षत्र में है। ठीक है ना? विशाख नक्षत्र में होकर नवांश में कर्क राशि में, विशाख 4 आपको पता है, जुपिटर का नक्षत्र हमेशा 1 2 3 4 नवांश में। दैट मीन डेबिलिटेशन से इमोशनल साइन में गया, जल तत्व से जल तत्व में रहा, तो बहता हुआ पानी, दुखी, अपने को ज्यादा समझने वाला है। मून जुपिटर के नक्षत्र में है, ठीक है ना? वो इन जगह अपनी ही राशि में, देयरफॉर स्टिल he does not believe, he lacks capacity to take more burden. So एमडी ने इंडिकेट कर दिया, यू आर नॉट एबल टू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू हैव लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन अपना टारगेट करो। बिकॉज आजकल प्राइवेट कंपनीज में टारगेट ओरिएंटेड है, टारगेट रीच किया अगले साल का प्रमोशन, टारगेट रीच नहीं किया योर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट गया। ये फियर है, but the Buddha was right in telling this. So when we see this aspect in horoscope, should we not bring them to their knowledge? You know, keep this in mind. Now, what is this Mercury doing in your horoscope? परखने की शक्ति दे रहा है, आपका मेमोरी लेवल को इंप्रूव करना है। जितना रिटेंशन पावर आपको हो सकता है, जितना मरकुरी स्ट्रांग है उतना रिटेंशन पावर आपको होगा। ग्रहण शक्ति इज फ्रॉम, मेंटल बैलेंस इज फ्रॉम चंद्रमा। नव ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशनशिप रख रहा है आपको पता है। दैट इज वाई इम्बैलेंस स्टार्ट्स। मिथोलॉजिकली आपको स्टोरी पता है, मून मरकुरी क्या होना है। तो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस को, देन विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन? इन माय ओपिनियन, चंद्रमा अपने घर में रहे, कोई भी प्लेनेट अपने घर में रहे, स्पेशली इन द नवमसा। नो, आपका काम होना चाहिए, when a planet would go to its sign in the Navamsa, which nakshatra will take them to their Navamsa, you will find wonderful results coming out of it. Not all planets can go like that. Take the case of Mercury. Mithun Rashi is Mercury and कन्या राशि मरकुरी में फर्क है या नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव, राहु मार्स गुरु नक्षत्र है जमीनी में, यहां सन मून मार्स, तो मार्स वहां भी है, मार्स यहां भी है।
है ना? बट जो मार्स नक्षत्र जेमिनी में है, दैट विल टेक इट अवे फ्रॉम कन्या। वेरे जो मार्स की नक्षत्र कन्या में है, इट विल रीटेन इट हियर। Begin Mrigashira and Chitra, when you see this, that means Chitra too would be definitely, but what is the relation between Mars and Mercury? Fight. Therefore, Krodhapan, नाराजी और शॉर्ट टेम्पर, तुरंत जवाब दे देंगे। अगर मंगल के नक्षत्र में बुध हो, you will invariably find तुरंत जवाब आएगा, बट चिंगारी के साथ। वो चित्र है नक्षत्र, बट मृगशिरा विल नॉट गिव दैट। मृगशिरा तो सॉफ्ट पेडलिंग है, वहां एक तन्मयता है, इस एग्जॉल्टेड मर्कुरी है। देयरफॉर मेरा बुद्धि आपसे ज्यादा है। देयरफॉर द स्पार्क दैट इज कमिंग, दैट यू विल सी देयर, है ना? नाउ मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग, मेंटल हेल्थ वीक, मेंटल हेल्थ अफ्लिक्टेड आर यूजलेस। चार कैटेगरी में डिसाइड करो। मेनली हम सुनते आए हैं अभी तक, सर आपका चंद्रमा पीड़ित है, मून राहु के साथ है, मून राहु के नक्षत्र में है, मून केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ है, मून मंगल के साथ है, मंगल दोष हो गया। बिकॉज हमें सिखाया गया है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा ड्यूटी बनता है, नेगेटिव भी हो उसे पॉजिटिव में समझाना है। अदरवाइज वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, ये समझना है आपको, राइट? तो वैशाली थोड़ा पढ़ोगे आप Yes, sir. आगे? Yes, हम्म, sir. हम्म, So the rule of Moon and Mercury. हम्म, Moon Mercury constitute the thinking mind. हम्म, Affliction to either may result in mental weakness. हम्म, Transit of Rahu, Saturn, and Ketu also affect moods. हम्म। आगे नेक्स्ट। Why every one of us is subject to moods, that is, mind reactions. The sign occupied by the moon and the strength of the afflicting planet must be invariably assessed before venturing any prediction. At, at one time or other, every human being will come across a situation and react hysterically due to excitement or depression. It's not always the moon Mercury combined. Even if they are free from affliction, a person may react due to transit aspect of malefics like Rahu, Saturn, Ketu. राइट, थैंक यू। नाउ देखो, देर आर 12 positions which will make a planet work, Gautama. Keep the moon in that, keep the Mercury in that. Say, Mesha Rashi, Ashwini 1, for Gautama position. Moon and Mercury in that situation. Vrishabha Rashi, Rogini 2,
ठीक है. Exalted moon, Mercury also will become Vargottama दोनों. Punarusu 3 in Gemini will become Vargottama. Punarusu 4 in Kark will become Vargottam. Now, if this planet concerned with mind and intellect are in Vargottama position, like that you carry on with other thing. Every Rashi has got one nakshatra pada, respectively in the order of 1, 2, 3, 4 pada, you will find in Vargottama position. That's how it has been constructed. That means somewhere, if you have done very good karma, वर्गोत्तम पोजिशन में प्लैनेट मिलेगा. पुष्कर नवांश में प्लैनेट मिलेगा. 24 पुष्कर नवांशास. हमें तो 10 तो चाहिए. एटलीस्ट 50% पुष्कर नवांश में हो 5 प्लैनेट. इस युग को मैनेज करेंगे. डिप्रेशन का समाचार नहीं आएगा. सी, जब चंद्रमा इन डेबिलिटेशन है, अनुराधा 4 ले लो, वर्गोत्तम है अनुराधा 4, बट चंद्रमा कहाँ होगा? अपने डेबिलिटेशन साइन में. देयरफॉर आपका नीच चंद्रमा है सर, आपका माइंड नीच का है बोल देंगे. इसलिए आपको इमोशनली एवरी टाइम सम प्रॉब्लम यू आर कैरिंग इट योर सेल्फ. जो सिचुएशन मैंने बोला था वो प्रॉब्लम उसमें. ही वुड नॉट लीव मी गोइंग ऑन आस्किंग वन आफ्टर अदर वन आफ्टर अदर. मैंने कहा था 1 साल के बाद देख लो. एक ही सोल्यूशन उनको दिया. यू आर नाउ हैविंग ए प्लैनेट विच इज देयरफॉर माइंड इज नॉट वर्किंग. एंड आज देखो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है. कभी से कब गई कुछ कौन है इसकी. देयरफॉर क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं. He just lost his, because he felt that something, some responsibility which given to him has been taken away, therefore he will be dismissed. मैंने उनको समझाया, देखो भैया, the lesser the work, the greater the responsibility and more time for you to do that. Therefore आपका टारगेट तो 100 crores है, make it 150 crores. By lesser responsibility. You are capable of doing it. You have been doing. It's not the first year. You are working for the 27th year in the company. अगर यूं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, किसी और को दिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेंटल इम्बैलेंस कैसा काम कर रहा है वो बात कर रहा हूं आपको. Always remember, our reaction totally suppressed. उसका गुस्सा आ रहा है, how they can take it from me. भैया, they are the people who have given you a job. उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. They have recruited some people. They have to give job to them. You are being a very elder person in the office. You have been given. He would not agree. They should have made people working under me. अब क्या करें, उनको बदला जाए. डिप्रेशन. नो, आई रिमेंबर Professor Sukhdev Chaturvedi used to talk about depression, tension, emotion, बोलते रहेंगे अब से शन शन शन. With the result क्या है? Everybody would be listening to him because
fun attached in that. The tension क्यों? चंद्रमा शनि के साथ है. इमोशनल एंड दुख दोनों मिल रहे हैं और वाटरी साइन में रहे हैं, अग्नि तत्व राशि में रहे हैं, पृथ्वी तत्व राशि में रहे हैं. Everywhere when this combination comes, भावाश्रित संबंध में वह टेंशन देगा. ये समझ रहे आपको? वो कौन से भाव में दैट कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का जो भाव में बैठा है उस भाव संबंधित बातों पर उनका टेंशन होगी. मरकुरी सैटर्न बैठा है पंचम भाव में या पंचम भाव को देख रहा है. मरकुरी सैटर्न अक्सर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट बदलेंगे. बुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन एक आलसीपन, रिटेंशन पावर कम होगा, रिजल्टिंग इन व्हाई नॉट आई गो फॉर अनदर इजी सब्जेक्ट, और उसमें कामयाब होंगे. इनवेरिएबली आप देख सकते हैं मरकुरी सैटर्न. वो तो 11th उसमें है, 5th उसको देख रहा है, पढ़ाई में चेंज होगा नहीं, बुद्धि में पैर बदल हुई. Similarly, Moon and Saturn. Now see when Moon and Mars are together. Agni and Jal. अगर मार्स स्ट्रांग है, इट विल बी बॉइलिंग वाटर. ठीक है ना? वट एवर यू आर रीडिंग हियर, understand how the astrologically the picture could come. Moon and Jupiter are together. पैसा कमाने के लिए सोचेंगे, ज्ञान किस तरह हम यूज करेंगे फॉर अर्निंग मनी, बिकॉज द योगा इज दैट मेंट फॉर दैट. मून एंड सन आर टुगेदर. obscured मून हो गया ना, टोटली ऑब्लिटरेटेड, उसका वैल्यू खत्म. अमावस्या, वही चंद्रमा पूर्णिमा के दिन में हो मैडम के राज चलेगी. बिकॉज पश्चिम वाली चंद्रमा 180 डिग्रीज आप में नजदीक नहीं आ सकते. आई एम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे. उसी चंद्रमा हो, हाउ इट विल रिफ्लेक्ट द मेंटल एबिलिटी ऑफ द पर्सन. पूर्ण चंद्रमा में पैदा हुआ है, पूर्णिमा के दिन जया तिथि में पैदा हुआ, मान है नहीं. अमावस्या भी जया तिथि है, 15वां दिन. लेकिन फर्क क्या है? वहां माइंड इज डार्क, यहां माइंड इज क्लियर, ओपन, स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल विल कन्विंस अदर्स, विल नॉट वैसिलेट. इस तरह इधर उधर की बात नहीं करेंगे. यही है सिस्टम, यही है आपको करना है, यही है आपको रिजल्ट देना है. दिस इज सिचुएशन. देयरफॉर अमावस्या क्रॉस करने के बाद धीरे 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 चंद्रमा इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, माइंड इज गेटिंग एक्टिवेटेड. तो बॉडी माइंड सोल की बात कर रहे हैं. मान लो डिप्रेशन को कैसे निकालें भाई? नो सर, मेरे माथे में लिखा है आई हैव टू गो इनटू डिप्रेशन. ऐसे कहने वाले देखिए आप, कितना भी कन्विंस करो, दे विल नेवर लुक इनटू इट. सो उनके लिए
व्हाट इज द तरीका बता रहा हूँ. आस्क देम टू टेक एज मच वाटर एज पॉसिबल. आस्क देम टू कीप कूल. मैंने नहीं कहा जापानीज थेरेपी है, रिसर्च समाचार है. डिप्रेशन से बाहर आना है, पानी पीना है और कूल वाटर पीना है, so that depressive tendency will slowly come out. You will never think, even if it's the weakest moon or most afflicted moon. मान लो जमालिस बोलेंगे अब मोती पहनाओ. शास्त्र में सब कुछ दिया है. चंद्रशेखर विशालम, प्रेयर करो शिवा, दैट इज रेमेडी है. लेकिन सिचुएशन से बाहर आना है, उनके लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैव टू डेवलप, without which it will never work. So डिप्रेशन हो, एलेशन हो, एक्सल्टेशन हो, सब चंद्रमा का काम है. साधु संत हैं, they have won over all senses, supposed to, right? If they are clean with regard to that matter, you will always find their words are heard, appreciated, people throng for दर्शन करने के लिए. One such person whom I used to meet in those days is Chandrasekhar Saraswati Maharaj of Kutch. Whenever an opportunity comes, I used to go check. दर्शन करना है, that's something else. उनका तेज, so that मेरा मून भी 12th हाउस में है, इसलिए बोल रहा हूं. If I am able to speak to you, you must understand how this parihar could come out. So डिप्रेशन हो, मन की बात है. डिप्रेशन 2 दिन होगा नहीं. बेसिक चार्ट में व्हेन अ प्लैनेट इज वेरी वीक, दैट उस प्लैनेट से क्या एक्सपेक्ट करोगे? कुछ नहीं. हेंस इट इज रिक्वायर्ड, वी हैव टू स्ट्रेंथन दैट. स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? मोती पहना हुआ, ये करो वो करो बोल देंगे जबरदस्त. You don't see how the Lagnesh is going to behave. Lagnesh is capable of doing things in accordance with the advices given. एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस को सुनने वाले हो लग्नेश, दे दो. प्लेंटी ऑफ एडवाइस दे दो, फॉलो करेंगे. लेकिन वक्री लग्नेश है, तो हमें उनके पात में जाके समझाना है. देन ओनली यू विल फाइंड ही इज एबल टू हियर. अच्छे अच्छे बातें करेंगे, सुनेंगे. आप इस रास्ते चुना, ये गलत है, वो मानेंगे नहीं आपको. बिकॉज उनको उस रास्ते में जाके he has to fail and then come back. Then realize साहब ने कहा, मैंने सुना नहीं. He will repent for it later on. Planetary position, लग्न लॉट. ऑलवेज प्रेडिक्शन के लिए दे रहा हूं. मेंटल हेल्थ का स्टेटस केवल चंद्रमा की ही नहीं है, बुध की नहीं है, जो लिखा है इधर. आपका लग्नेश, आपका सूर्य, बॉडी माइंड सोल. कितने लोगों के लिए बॉडी माइंड सोल रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स इज इट स्ट्रांग? बॉडी स्ट्रांग है, माइंड स्ट्रांग नहीं है.
माइंड स्ट्रांग नहीं, पढ़ाई कम है। सोल स्ट्रांग है, तब भी कुछ संभाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? वैसिलेशन इज ओनली फ्रॉम द माइंड कंट्रोल। इफ द माइंड इज कंट्रोल्ड, irrespective of the situation, how to manage, संभालने की शक्ति चंद्रमा gives. So that has to be first seen. There are people, parents, sufferers हैं। मैं तो बोलते रहूंगा, ठीक है। इसमें you find depression leads to what? Depression leads to loss of mind. Loss of mind leads to mental retardation. That situation will come एक्सट्रीम पॉइंट में। बच्चे पैदा हो रहे हैं, सूझबूझ नहीं है। आजकल के तरीके से वो दे कॉल इट एज ऑटिज्म। पुराने जो है पागल है, सिंपल चीज। वो प्रज्ञा नहीं है, बोलते हैं। हम भी मून अफ्लिक्टेड है। कुछ इधर ऐसे इससे बात करेंगे, एक पागल की बात मत करो, बोलते हैं। बट एवरीबडी कांट बिकम अ मैड पर्सन। Madness is the reaction that you create, which is not normal. Therefore, you can't be branded as a ill health of mind. Then 100 में 90 people will be mentally ill. नहीं, we are not talking about that sort of health. Because कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हमें भी अपने माइंड को खो के बैठना है। बिकॉज सक्सेस एंड फेल्यूर्स आर पार्ट ऑफ द गेम। अगर फेल्यूर ही रिपीटेडली आ रहा हो बिकॉज ऑफ वीक प्लैनेट्स इन आवर हॉरोस्कोप, देन वेयर इज द रोड फॉर सक्सेस? सो भगवान जय श्री कृष्ण कर। तो संकट काल में शंकर का नाम लेना है, ऐसा वचन बोलते हैं। इसी के लिए बोल रहे हैं, पीपल हु फील mental affliction, the word is somewhat taboo है for. If you cannot control your mind, then everything is lost, especially astrologers. A fear complex comes into their mind. सर, राहु चंद्रमा के ऊपर जा रहा है, 1.5 साल रहेगा, क्या होगा? कुछ नहीं। जुपिटर केतु की दशा चल रही है, सर क्या होगा? जुपिटर केतु टुगेदर है और एस्पेक्टिंग चंद्रमा, पूछेंगे। Now, when you look at the primary situation of the planet, that is the basis for you to find out गोचर में क्या हो रहा है ना? थोड़ा आगे चले। Yes, sir. 1 or 2 हॉरोस्कोप ले लो ताकि वी कैन एक्सप्लेन। बाकी सब तो पढ़ लीजिए आप। आई डोंट वांट गोइंग ऑन रीडिंग व्हाट इज देयर। जो द लास्ट वन, The fifth one, sir. हाँ, 5th वन ले लो, जो 7 January 1984. हाँ, राइट। Okay. Say, नो लुक एट दिस। हाँ, कर्क लगन है. आप कर्क लगना, राइट। Yes, sir. कर्क लगन है सर। 4th हाउस में मार्स सैटर्न
तुला Mars राशि में Saturn in the fourth. 4th. Saturn aspecting Lagna then, right? No? Yes, sir. Okay. Then Venus, 5th Hmm. house with Ketu. Venus in the fifth. Yes, sir. अच्छा केतु के साथ. केतु के साथ. अच्छा. And then 6th house, Jupiter, Mercury, retro, Sun. Jupiter, Mercury, Sun. और Mercury retro. Okay. And then 8th house, Moon, Lagan Lord. Oh. And 11th house, Rahu. 11th house Rahu. Right. Now, can you tell me how many planets are in malefic nakshatra? शनि के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, चंद्र राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में कितना प्लैनेट है? से मार्स है चित्रा में. सैटर्न है विशाखा में, गुरु के नक्षत्र में. अच्छा. वीनस अनुराधा में है. देन जुपिटर मूला में है, केतु. मरकरी मूला में है, केतु. सन पूर्वाषाढ़ा में है. एंड मून सतविषा में है, राहु. No, this is one point to be noted for you. Majority of the planets are in malefic nakshatra. एक इंगित कर रहा है आपको लाइफ में कुछ न कुछ कष्ट झेलना है. I am not talking about it will be a mental health. I am not talking about it. Overall perception, when majority of the planet, ज्यादातर ग्रह अगर पाप ग्रहों के नक्षत्र में हो, जहां भी बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव संबंधित बातों पर कुछ न कुछ पंगा लेने वाला बात है. लाइफ में फिक्स करना है दशा. Now, this native was born in Satabisha Nakshatra. Lagnesh in the 8th bhava. Lagnesh aspected by any planet? नो सर. No planet aspecting. Surya again is in the 6th bhava. You know? यस सर. Houses afflicted देखो. Rahu 11th house afflicted. You know? 4th house. Lagnesh has gone to the 8th bhava. 4th house में Mars and Sun. Saturn. Mars and Saturn. Mars and Saturn, sorry. Mars and Saturn. 5th house में Venus with Ketu. है ना? Yes sir. Now look at this. दशा का क्रम देख लो. राहु, जुपिटर, सैटर्न. सत्यभिषा 1 or 2 or 3? सर शतभिषा 4. सत्यभिषा 4. इसका मतलब 4.5 years. Not even that. Balance of dasha. During the tenure of Rahu Dasha, fortunately Rahu in the 11th bhava, Chandrama say 4th. Sir, just one correction. It's Shatbisha 2. Satavisha 2. So balance of Dasha is 9 then. Yes, sir. है ना? Okay. 9 साल. Tell me one planet which is free from affliction or Only not ill placed, Madhu. no planet, sir. नहीं, ill placed Jupiter, Mercury. Jupiter only. Jupiter, Mercury, Saturn. Chandrama is in the 8th house. Rahu Ketu axis में Venus, Saturn, Mars together. Tell me one planet which is not afflicted.
Now, Mars is aspecting the seventh bhava. Saturn is aspecting Lagna and the 10th. Rahu का aspect लो लो, केतु का aspect ले लो. Which bhava is not afflicted? Tell me. See, phytology में मत जाओ. I am not talking, pointing out ये हुआ therefore ये. That's there. But when you observe, what is the state of health of this native? That's what one has to see. When it will change. Not all that person who are born in Satabisha will have a mental health. I'm not talking about it. No nakshatra from that point of view will cause. Now, Satabisha 2. Therefore, it is continuous to be in Saturn Dasha only, Chandrama. Saturn Rashi only. Rashi and Navamsa. Fourth Navamsa. So naturally, it will come back to Saturn. Hona? Yes. Rahu 2 is fourth Navamsa of Kumbh Rashi. है ना? Yes. Therefore, Tula se fourth आएगा. So moon will be there in Navamsa in Saturn Rashi. So moon राशि में भी नवांश में भी Saturn की राशि में ही है. Not in its own nakshatra, but in the nakshatra of Rahu. है ना? Yes, sir. So मन में सदा बीती उत्पन्न होगा ना. Mars, Moon, Rahu, Saturn. Either the mind is totally dejected or the native's mother is not living. Because Lagnesh hai. Is in the 8th bhava. Therefore, she has to face, this native has to face difficulty right from the beginning. Fourth house, देखो ना मंगल शनि. Right? Look at this bhava. Which dasha is to be focused? The mind of this person is apparatus. Moon, राहु के नक्षत्र में, शनि के राशि में, नवंश में भी, right? So अंदर व्यसना or dukh will be there. Now, 8th part of the body or Kumbh Rashi will have an affliction as far as the mental status is concerned. Mars is aspecting the 7th bhava. Fortunately, no bhava is any bhava in Papakartri Yoga. I have told you about Papakartri Yoga. Could just read what you have written, Vaishali? Yes, sir. So, coming to the conclusion of this horoscope, the sign Cancer rises in the ascendant, which means that besides Rahu, Ketu, Jupiter, Saturn become also functional malefic planet. The moon, being lord of the ascendant, is weak as it's badly placed, as placed in the 8th house. So in the presentation also there is one combination. If moon is in 8th house and weak, it will be considered as a weak planet. The lord of the 3rd house, Mercury, ruling growth, is weak as it's an infancy. Its dispositor is also weak. The sun is weak as its dispositor is weak. The most effective point of the house placement is exactly afflicted by Jupiter. The sun become additionally weak as it's closely afflicted by Jupiter. The 3rd house is not afflicted
but 5th 11th house is in Rahu Ketu combination, so it will again come as a weak combination as far as mental health is concerned. The native was born in Rahu Mahadasha in the subperiod of Saturn. The native married in the Saturn Mahadasha and divorced also in Saturn Venus Antardasha in year 2018 and gone through a mental trauma for 2 years. ठीक है ना? You have now understood why this 7th house afflicted, 8th house afflicted. पैदा होते ही चंद्रमा का पोजीशन is giving you tension with regard to the marital life. है ना? आगे चलते हैं तो there will be no end to this. I have given you 6 horoscopes of mental retardation or deaf and dumb cases where they will not be able to speak, etc. Just आराम से पढ़िए, then you will be able to understand. With that, I will like to finish my. Thank you very much. धन्यवाद. Thank you so much, Chari sir, Yeah, right. for this beautiful presentation. And you took us through all the important points. Firstly, the emotional core, how the moon sign governs one's subconscious needs and emotional security. Secondly, the mental landscape, by understanding Mercury's role in our thought patterns, communication style, and how one's anxiety triggers. And thirdly, the cycles of resilience, recognizing that cosmic timings like Saturn, Rahu, and Ketu transits as period for which are required for restructuring and personal maturity rather than hardships.